हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राजा राम मोहन रॉय, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। The Raja Ram Mohan Roy was born in a Brahmin family of Bengal. He was born in a Brahmin family of Bengal. He knew many a language and had a read and Quran, Bible, and the New Testament along with the Hindu scripture in the great depth. Liberal education exposed him to different culture and philosophies, and deep moved by their plight of their brother as a Vidhu, who had been forced to be a summit a sati. He was determined to be uproot his social practice, and this led him to challenge other unfair social and religious practice prevalent at the time. That is important. He founded is a Brahmo Samaj in 1828. Here she, your picture, the Raja Ram Mohan Roy. That is the most important here. He was the first person who took a initiative to be challenge the practice of sati, and it has soon become his lifelong crusade. He has mobilized public opinion and cited the script to be sure that his practice had no sensation of Hindu religions. In the process, he faced the disapprobation and enmity of orthodox Hindus. In this effort of the support by the Governor General of India, Sir William Bentinck, a law was passed in 1829, making sati illegal and punishable. That is the most important. His effort, he was supported by the Governor General of India, Sir William Bentinck, and a law was passed in 1829, and making sati pratha is illegal and punishable. He also made effort to be advocate with the remarriage and condemned a child marriage. There is most important here reformer. There is a sati illegal, remarriage, and child marriage. He represented a synthesis of Eastern and Western thought, and a thought is on the Vedas and Vedants and Upanishad. He also took up the best in all religions, as he was well versed in the scripture. He advocated their importance of Vedas in their reforming religions and upheld of the fundamental unity among all religions. He held that as all the practical ascent texts of Hindu purchase their monotheism and worship one of the God. There is a monotheism mean here the work of one God, and oppose the polytheism. Polytheism means here belief in more than one God. He was critical of the idols of worship and awareness of the meaningless ritual. He strongly advocated their learning of English language, literature, and scientific advancement and technology to be modernized India. He has strongly educated the learn of English language, the literature, scientific advancement, and technology to modernize India. He maintained the English school in Calcutta at his own cost. There is the most important effort here. There is a maintenance of English school in Calcutta at his own cost, and subjects like mechanic, philosophy were also taught among their subject. A Vedanta college was opened in 1825. Raja Ram Mohan Roy is helped in there is opening of Hindu college in Calcutta for higher learning. That is important on this period time. राजा राम मोहन राय, आखिर राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारने की जो बीड़ा है क्यों उठाई? क्या इनमें कुछ अलग बात थी? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था
उन्होंने कुरान, बाइबल और हिंदू ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया था। क्योंकि कहते हैं कुरान हो, बाइबल हो, हिंदू ग्रंथों हो, सभी में अच्छी बातें और जग कल्याण की बातें होती हैं। कोई भी हमें धर्म गलत रास्तों पर चलना नहीं सिखाता है। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार के होते हुए उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों की अध्ययन किया और उन वास्तविकता को जानने की कोशिश किया जो हमारे समाज में पहले थे। उदार शिक्षा ने उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ उजागर भी किया, यानी हर बात पे उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष पिक्चर जो है वो राजा राम मोहन राय जी का है, जिन्होंने समाज सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका सुधार था सती प्रथा को बैन करना इंडिया में, जो इन्होंने बखूबी किया। और इनका ये प्रयास के कारण न जाने कितने कहते हैं बहु बेटियों की ज़िंदगी सुरक्षित हो सकी भारत में। और इनका कदम सदैव सराहनीय रहेगा। कहते हैं उसके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ करता था जब उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। कहते हैं एक बात सच्चाई है, आवश्यकता ही किसी चीज़ की जननी होती है। जब अपने पे मुसीबत आता है तब हमें दूसरे की मुसीबत का एहसास होता है। तो यही बात इनके साथ भी हुआ। उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसकी दुर्दशा से उन पर असर पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को ख़त्म करने का निश्चय किया। क्योंकि जब इनके परिवार पे ही वो प्रथा मर दी गई जो समाज के लिए कुप्रथाओं के रूप में थी, फिर इनके मन में विचार आया कि जो मेरे घर में हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, क्या औरों के साथ नहीं हो रहा होगा। तब इनके विचार में बदले और उन्होंने समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ था जब उनके भाइयों के पत्नी के साथ प्रॉब्लम आई थी। कहते हैं उस समय उन्होंने अन्य समुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाओं की चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी की और सती प्रथा की चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। देखिए बहुत कभी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बारह समाज की स्थापना किया। ये कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि बारह समाज की स्थापना किसने किया और किस सन में की। तो उन्होंने 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया और उन्होंने सती प्रथा को चुनौती दी। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पे चुनौती देने का साहस किया था। कहते जल्दी ये उनके जीवन भर का कर्म युद्ध बन गया, क्योंकि जीवन भर इन्होंने इसी पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जीवन भर के लिए इनका धर्म युद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। क्योंकि समाज में ऐसा कहीं भी, आप भी अभी कोई भी किताब पढ़ते होंगे, हमारे इतिहास में कहीं भी सती प्रथा जैसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। और उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों के सामने अपनी राय प्रस्तुत किया और दिखाया कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई भी बातें लिखी हुई नहीं है। और इस प्रक्रिया में उनकी रूढ़वादी हिंदुओं की नाराज़गी और दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अच्छी बातें यहाँ पर लोगों को समझ जल्दी नहीं आती है। और यह आज का समय भी है। आज अच्छी बातें जितना भी कर लो, लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। लोगों को तो दिखता है सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनका सिर्फ लाभ हो, लेकिन उनको पता नहीं कि लाभ वो किसी न किसी रूप में निकल जाता है। और ये इनके सामने भी ये हुआ कि जब इन्होंने अच्छी बातें लोगों के सामने रखी तो लोग नाराज़ हुए, उनसे दुश्मनी का सामना किया, जो कि कहते हैं समय की कैसी ये दशा होती है। भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम्स बेंट्रिक्स ने इसका समर्थन किया। लेकिन देखिए कहते हैं, ये भी मैं भी जानता हूँ कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बातों को समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने नहीं समझते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं इस बात को समझ लेते हैं। और इसमें देखिए जो अंग्रेज़ थे, गवर्नर जनरल सर विलियम बेंट्रिक्स ने इस बात की समर्थन किया। उन्होंने ये बात कहा कि बात सही में गलत है और समाज के लिए बहुत ही कुप्रथा है। 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। यानी गवर्नर जनरल जो उस समय के थे सर विलियम्स बेंट्रिक्स, उन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया 1829 में। सती प्रथा अवैध और दंडनीय माना गया।
उन्होंने बाल विवाह विधवा पुण्य विवाह को वकालत के लिए प्रयास भी किया और उनका जो ये कोशिश था सराहनीय था। उन्होंने पूर्वी और पश्चिम विचारों में संश्लेषण और प्रतिनिधित्व किया, यानी उन्होंने पश्चिमी विचारों का भी समर्थन किया और धर्मशास्त्रों को वो अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की और धर्म सुधार तथा सभी धर्म के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया। और उनका मत था कि हिंदू ग्रंथों में एकश्वरवाद की प्रथा जोर दिया गया था। सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ही पूजा और जो बहुदेववाद यानी एक से अधिक भगवान में विश्वास का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन जो रीति रिवाज खंडन था उसको उन्होंने खंडन किया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा का उन्होंने जो है खूब जोर जो है आलोचना किया और अर्थहीन रिवाजों का जो है बिल्कुल खंडन किया, जो कि सही भी था। उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य और वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी भारत के आधुनिकीकरण की वकालत भी की और ये उनका सराहनीय कार्य था। उन्होंने कलकत्ता में अपनी पैसे से एक अंग्रेजी स्कूल बनाया और यहाँ और विषय के साथ यांत्रिक और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। वेदांत कॉलेज जो 1835 में खोला गया था, इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहते हैं राजा मोहन राय ने हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस योगदान को आज भूला नहीं जा सकता।